Good morning, 12th class. We are on chapter number 6 of our geography book, India, People and Economy. And the chapter name is Water Resources. So, not a very difficult chapter. Many things are basically the ones that we already know, but थोड़ा specific में चला जाएगा obviously because we are in 12th class. And next of all, before starting this chapter, I just want to again tell you that this chapter will again have lot of facts and lot of data. Many of them you will have to actually memorize. ठीक है, so we'll find out certain ways जिससे कि हम अभी उसको थोड़ा थोड़ा memorize कर लेते हैं, so that later on it is not like we have to learn so many facts and so many you can say percentage, numeric values, यहाँ पे इतना percentage ये चीज available थी, ground water ये वाला इतना use होता है, इतना हमारे पास water resources. So all these data are something that we will have to learn actually, but अपने start में slowly along with the class try to learn them up, and so that at the end of the chapter you don't end up with having a lot of things to learn all together. Okay, so now let us start with the chapter. So as the introduction goes, that obviously we know, we have seen through our whole 11th class and also in certain of the 12th class section, हमने देखा जो चीजें हैं वो स्टेशनरी नहीं रहेगी, स्टैटिक नहीं रहेगी, they will always change. So obviously future will change and somewhere हमें पता है we are responsible for it. चाहे हम demographic transition की बात करें, चाहे हम geographical चीजों की बात करें, चाहे population की बात करें, technology we know with lot of confidence की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और उसके साथ साथ बाकी सारी और चीजें भी चेंजेस आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में सिमिलरली वाटर स्कैर्सिटी इज आल्सो अ बिग प्रॉब्लम दैट वी पीपल आर फेसिंग नाउअडेज. वाटर स्कैर्सिटी जो है इट इज समथिंग दैट इज वेरी यू कैन से important for us to understand. We think that water is available to us in ample amount, but we need to understand the usable water is very less. So we are facing water scarcity and it is somewhere a big challenge that we are facing. और ये अपने सामने आया क्यों है problem? There are various reasons. The first reason is increased demand है. चाहे हम डोमेस्टिक पर्पस की बात करें, मतलब ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ी है तो डोमेस्टिक चीजों में वेदर इट इज कुकिंग, वॉशिंग एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ उसमें बढ़ी है, इंडस्ट्रीज बढ़ी है तो वहां पे यूसेज बढ़ा है. एग्रीकल्चर ज्यादा हमें प्रोडक्शन चाहिए वेदर इट इज रिगार्डिंग आवर पॉपुलेशन, वेदर इट इज रिगार्डिंग द डिमांड, तो इरिगेशन ज्यादा यूज हो रहा है. एंड अलोंग विद दिस इसलिए ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है. वाटर नॉट ओनली, हम जब भी पॉल्यूशन की बात करते हैं सबसे पहले वी जस्ट थिंक अबाउट द एयर पॉल्यूशन, बट वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन आल्सो डज एग्जिस्ट, आल्सो नो एज पॉल्यूशन. सो एयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है जिसके कारण वी हैव स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. Water is basically a cyclic resource which is abundantly available on the globe, but it is not present in that you can say quality which is usable. जितना हम quantity wise देखते हैं तो water बहुत available है. One more thing that we may think when we are talking about these water resources and all, we may think कि because water cycle हमने छोटी classes से पढ़ रखा है कि water cycle is something that is always there and the phenomena which is a continuous phenomena that is occurring on the surface of the earth. So why do we face scarcity? Because we are not using it wisely and we are actually causing problem in the balance of the environment. हम उसको imbalance कर रहे हैं because of our activities. चाहे वो underground water का हम देख रहे हैं deep in sink हो रहा है, water pollution हो रहा है जिसके कारण obviously over utilization हो रहा है, ओवर यूसेज होगा एक्चुअली, नॉट यूटिलाइजेशन. सो जब इतना ज्यादा हम नोटिस करेंगे ये सब चीज होगी तो ऑब्वियसली जो पूरा बैलेंस मेंटेन है दैट विल बी डिस्टर्ब. जब हम डेटा की बात करते हैं या हम बोलते हैं कि इतना ज्यादा वाटर अवेलेबल है ऑन आवर ग्लोब, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दैट आल्सो.
अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 71% ऑफ दी जो अर्थ का सरफेस है इट इज कवर्ड विथ वाटर, बट फ्रेश वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली अबाउट 3% ऑफ द टोटल वाटर। यानी टोटल हमारा अर्थ का जो सरफेस है उसमें हमें पता है 71% जो है इट इज कवर्ड विथ वाटर। इफ यू सी आवर अर्थ in any of the pictures you will see blue color ज्यादा pair होता है as compared to the green, that is land surface के comparison में, because water is more available. Even in the on the land surfaces also it is available in the form of river, and maybe in between there are certain small seas, lakes and other small inland जो भी water bodies है, ठीक है, rivers, tributaries etc. तो टोटल 71% ऑफ द अर्थ सरफेस जो है उसमें से 71% तो हमारा क्या है, वाटर है, जिसमें से फ्रेश वाटर सिर्फ 3% है। सो और इस फ्रेश वाटर में से भी बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन है विच इज अवेलेबल टू अस फॉर आवर यूसेज। ओके, सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन एनालाइज कि हमारे पास कितना पानी अवेलेबल है जो हम यूज कर सकते हैं। बोलने को तो 71% of the earth surface is covered with water, but we can use only a little bit of it, ठीक है। सो जो हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि अब there are tensions that are being created and there are disputes on sharing and controlling this water resource, ठीक है, and it is somewhere becoming a problematic situation in many areas of the world. That is why there is a need to assess कि हम कैसे वाटर को यूज करें, एफिशिएंट यूज करें, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, वाटर को कंजर्व करें, मल्टीपल यूज करें, उसका कैसे हम कंजर्व करें, कैसे रिसाइकल करें वाटर। ऑल दीज थिंग्स आर very very important for us now. So in this chapter we will be talking about water resources in India, because obviously we are talking about India in this book. इसका geographical distribution कहाँ है, sector wise utilization कैसे होता है, and what are the methods that we are using it for its conservation and its management. Okay, so we need to understand here that water is really important. Even few of the great scholars have said that maybe the third world war may occur because of water. But you can understand the importance of water now, the way we are actually degrading it, ठीक है। सो अब हम पहले हमारे ये हम अब जब कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की बात करेंगे उससे पहले इट इज नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड that how much water is available in what quantity, in what form, how are we using it, and then how should we actually use it. So we'll be now talking about the water resources in India. तो जब हम वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया की बात करेंगे, अगेन लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द डेटा। इंडिया जो है अराउंड 2.45% ऑफ द वर्ल्ड का सरफेस एरिया जो है वो इंडिया के पास है। व्हाट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया, जिसमें से 4% जो वाटर वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज है वो हमारे पास है। बट वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में, 16%। सो अंडरस्टैंड यहीं पे हमारा बैलेंस इक्वल नहीं है, मेंटेन्ड नहीं है। हमारे पास वर्ल्ड के लैंड में से 2.45% अवेलेबल है, 4% हमारे पास वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है, पर 16% हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हैं, ठीक है। टोटल वाटर अवेलेबल जो इंडिया में है फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इन आवर कंट्री इन अ ईयर इज अराउंड 4000 क्यूबिक किलोमीटर। कितना? 4000 क्यूबिक किलोमीटर। अवेलेबिलिटी फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर जो वापस से रिप्लेनिश होता है, हम यूज करते हैं, वापस प्रेसिपिटेशन के कारण एब्जॉर्ब होता है या रिवर फ्लोइंग के कारण एब्जॉर्ब होता है, और ग्राउंड लेवल वाटर लेवल जो वापस से रिप्लेनिश हो जाता है। तो जो और ये हम यूटिलाइज करते हैं। सरफेस वाटर और जो रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर है इट इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर। आउट ऑफ दिस इसमें से भी ओनली 60% जो है वो हम एक प्रॉपर अच्छे यूज के लिए उसको यूज कर पाते हैं। सो द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स इन आवर कंट्री is only 1122 cubic kilometer.
Okay, so let us just go through this data again. 2.45% तो हमारा वर्ल्ड का सरफेस एरिया है, 4% हमारे पास वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज है, बट 16% वर्ल्ड की पॉपुलेशन। टोटल वाटर जो हमारे पास अगर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में देखें अवेलेबल जनरली ईच ईयर 4000 क्यूबिक किलोमीटर्स, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर के फॉर्म में देखें तो 1069 क्यूबिक किलोमीटर। इसमें से अगर देखें तो 60% को ही हम बेनिफिशियल यूज के लिए कर पाते हैं यूटिलाइज। दैट मींस जो टोटल हम यूटिलाइज करते हैं वाटर रिसोर्स हमारी कंट्री का वो कितना है 1122 क्यूबिक किलोमीटर्स only। ठीक है, so that means हमने cubic kilometers because we are talking about the volume of the water, that is why cubic kilometer कितने एरिया में होता है उसके बेसिस पे we decide these data। इस डेटा से हमें ये तो पता चल गया है कि वाटर रिसोर्सेज जो अवेलेबल है इंडिया में वो कितने अमाउंट में अवेलेबल है। हमने बेसिकली देखा है प्रेसिपिटेशन से कितना हमारे पास वाटर अवेलेबल है, और अगर यूजेबल वाटर को हमने देखा है सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। ठीक है, सो जस्ट रिमेम्बर दीज थिंग। प्रेसिपिटेशन ईच ईयर के अकॉर्डिंग का डेटा है हमारे पास, ऑब्वियसली वो ईच ईयर का जिस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं उसके बेसिस पे। देन हमारे पास सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर के बेसिस पे डेटा है कि जनरली हम कितना जो वाटर है वो यूज कर सकते हैं। ओके, सो एज आई सेड दो चीजें हमें याद रखनी है, सरफेस वाटर रिसोर्सेज और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। सरफेस वाटर रिसोर्स क्योंकि प्रेसिपिटेशन तो हमारा हो गया अप्रोक्सीमेट इतना होता है, सरफेस वाटर रिसोर्सेज और जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है वो हम कैसे यूज करते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग नाउ। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू दिस टॉपिक, दैट इज सरफेस वाटर रिसोर्सेज। So now when we talk about the surface water resources, सबसे पहले तो surface water resources के sources क्या है? तो we have four important sources as you can see on your screen: river, lakes, ponds and tanks. Okay, what are they? Rivers, lakes, ponds and tanks. Now let us talk about them in detail. In our country basically हम देखेंगे we have around 10,360 rivers and their tributaries which are longer than around 1.6 kilometer each। यानी हम पहले किसकी बात करें, रिवर्स की बात करें। रिवर्स हमारी कंट्री में अगर हम देखेंगे they are 10,360 rivers and then their tributaries are longer than around 1.6 kilometers, rivers और उनकी tributaries। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें इन टर्म्स ऑफ क्यूबिक किलोमीटर की कितना वाटर अपने पास अवेलेबल है इनके फॉर्म में, तो मीन एनुअल अगर हम देखें फ्लो ऑफ ऑल द रिवर एंड बेसिन जितने भी एरिया से वो फ्लो करती है is estimated to be around 1869 cubic kilometer। ठीक है, हाउ मच? 1869 cubic kilometer। Now due to topographical, hydrological and other problems, only 690 cubic kilometers, that is around only 32% जो है water is available of the surface water is available for us so that we can utilize it। So simple terms में ऐसे तो हमारे पास 1869 cubic kilometer का हम देखेंगे रिवर बेसिन्स में वाटर अवेलेबल है, बट क्योंकि कहीं पे टोपोग्राफी ऐसी बहुत माउंटेनियस एरिया या ऐसे एरिया पे जहाँ पे हम उसको यूज नहीं कर सकते उस वाटर, या फिर और भी उससे रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हाइड्रोलॉजिकली ऐसे है या और कोई नेचुरल ऐसी ही प्रॉब्लम है जिसके कारण हम सारे वाटर को यूज नहीं कर सकते। सो ओनली अबाउट 690 क्यूबिक किलोमीटर जो कि लगभग 32% है हमारे पास अवेलेबल वाटर रिसोर्स का जिसको हम यूज कर सकते। वाटर जो फ्लो करता है किसी भी रिवर में वो डिपेंड करता है कुछ चीजों पे। ओके, वी हैव आल्सो done this in our 11th class in the drainage chapter।
just try to remember few things, recall few things. वाटर फ्लो जो होता है किसी भी रिवर का, वो डिपेंड करता है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या है? जितने एरिया पे जैसे प्रेसिपिटेशन हुई है और लैंड का इंक्लिनेशन ऐसा है कि सारा वाटर जो है बह के किसकी तरफ आ रहा है? रिवर की तरफ आ रहा है। तो वो पूरा एरिया जहाँ पे एक तरीके से वाटर इज कॉट, मतलब वाटर को कैच किया जा रहा है और फिर वो रिवर में जा रहा है, वो कैचमेंट एरिया पे डिपेंड करता है। रिवर बेसिन पे डिपेंड करता है कितने एरिया से रिवर फ्लो करती है। एंड ऑब्वियसली रेनफॉल विद इन द कैचमेंट एरिया, कितनी रेनफॉल होती है ताकि वो रिवर में चला जाता है, तो उससे भी डिपेंड करता है कि रिवर का जो फ्लो है, रिवर में जो वाटर है वो कितना है। ओके, सो अब हमें ये भी पता है कि इंडिया में जो प्रेसिपिटेशन है वो स्पेस वाइज अलग है, इन टर्म्स ऑफ कहीं पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, कहीं पे बहुत कम रेनफॉल होती है। वी नो वी आर अ मॉनसूनल कंट्री वेयर वी डिपेंड मेनली ऑन मॉनसून फॉर प्रेसिपिटेशन, एंड मॉनसून इज, हमें पता है, समवेयर समटाइम्स इट इज वेरी गुड, समटाइम्स इट इज बैड, कहीं पे बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। सो इसीलिए वेरिएशंस माइट अकर इन द, यू कैन से, जो पूरा रेनफॉल या वाटर अवेलेबल है इन द रिवर्स। अब इफ वी टॉक, एज वी हैव ऑब्वियसली सर्टेन आइडियाज अबाउट इंडियाज ड्रेनेज सिस्टम, हमें पता है कि हमारी कंट्री की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स, अगर हम नदर्न प्लेन्स की, अगर हम नदर्न इंडिया की या हिमालयन जो रिवर ड्रेनेज सिस्टम था, इफ यू ऑल रिमेम्बर, हमने बात की थी अबाउट गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस रिवर सिस्टम। इन सबके कैचमेंट एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी इस एरिया में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनकी कैचमेंट एरिया भी ज्यादा और रेनफॉल भी जनरली इधर ज्यादा अकर होती है। अगर हम देखें गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर्स जो हैं, they are basically, they account for only about 1/3 of the total area in our country, but about 60% of the total surface. Now again understand, यहाँ पे हम इंडस रिवर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, because we know most of इंडस रिवर water goes into Pakistan. So हम अभी बात करें अबाउट इंडियाज ड्रेनेज सिस्टम और इंडिया में कितना वाटर अवेलेबल है। सो गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो बराक रिवर्स हैं, ये अगर हम देखें जिस एरिया के अराउंड फ्लो करती है, दे फॉर्म ओनली अराउंड 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री, बट यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज अराउंड 60% अवेलेबल है। और अगर हम साउथ इंडिया की रिवर्स की बात करें, तो मच ऑफ द एनुअल वाटर फ्लो इन साउथ इंडियन रिवर्स, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है, इनको हार्नेस कर लिया गया है, ठीक है, दैट मीन्स द वाटर इज बीइंग यूटिलाइज्ड, बट इट इज येट टू बी डन इन ब्रह्मपुत्र एंड गंगा बेसिन। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का पूरा वाटर जो है हम अभी तक हार्नेस नहीं कर पाए हैं, बट हम गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का काफी जो रिवर का जो वाटर है और फ्लो जो है उसको हम हार्नेस कर पाए हैं, whereas ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन का काफी स्टिल वी नीड टू हार्नेस मोर ऑफ इट। सो एक हमारा ये, जब हम सरफेस वाटर की बात करते हैं, सरफेस पे मेनली हमने रिवर्स की बात की है, बिकॉज समवेयर बाकी तो रिवर से ही रिलेटेड है, और रिवर अपने इंडिया का मेजर, मतलब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, कवर करता है इंडिया का मेजर पार्ट। दैट इज व्हाई हमने देखा है ऐसे तो बहुत रिवर्स है, पर हम उसका बहुत कम पोर्शन यूटिलाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। एंड नॉर्थ इंडिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर्स है जो अकेले 60% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया वाटर रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूट करती है, और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया 40% करता है। गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी के जो ये एनुअल वाटर फ्लोज को हम हार्नेस कर चुके हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र एंड गंगा बेसिन्स के वाटर फ्लो को अभी भी हार्नेस करने की हमें और जरूरत है, वी हैव टू डू इट। ओके, so now let us talk about the groundwater resources. टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर जो वापस से रिप्लेनिश हो जाता है अपनी कंट्री में है अराउंड 432 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है। हमारी जो कंट्री है इसमें ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन जो है किसी किसी एरिया में बहुत ज्यादा है और किसी किसी एरिया में बहुत कम है।
तो जो लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है वो रिलेटिवली हाई है, जहाँ पे रिवर बेसिन्स होती हैं जनरली नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड पार्ट्स ऑफ यू कैन से साउथ इंडिया एज वेल। सिंपल सी चीज है क्लास, we will understand when we'll talk about the states, we'll understand कि कहाँ पे हाई यूटिलाइजेशन होता है ग्राउंड वाटर का और कहाँ पे कम होता है, एंड रीजंस आल्सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट बाय आवर प्रीवियस बैकग्राउंड, जितनी भी नॉलेज है अपने को पता चल जाएगा। लेट अस टॉक अबाउट इट। ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन बहुत हाई है, कहाँ पे है हमारे, हमने पहले देख लिया, यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन साउथ इंडिया, रिलेटिवली हाई इन द river basins lying basically इसके अराउंड। ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन सबसे हाई है स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। वेरी सिंपल, पंजाब हरियाणा वाली ऐसी जगह है जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, एंड स्पेशली आफ्टर कमिंग ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी वाली सीड्स, जिनको इरिगेशन बहुत ज्यादा चाहिए, तो अंडरग्राउंड वाटर को ट्यूबवेल्स के थ्रू, दूसरी टेक्निक्स के थ्रू बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है। राजस्थान क्यों, क्योंकि सरफेस वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, सो ऑब्वियसली दे विल नीड मोर ऑफ द ग्राउंड वाटर, एंड तमिलनाडु में भी because of these reasons, because Tamil Nadu, though it is somewhere near the coast, but obviously for irrigation and for other purposes, हमें पता है मानसून के टाइम पे इस एरिया में इनिशियली रेनफॉल नहीं होती, विंटर टाइम में होती है, सो यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि ग्राउंड वाटर जो उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है। पंजाब हरियाणा एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, राजस्थान बिकॉज सरफेस वाटर कम अवेलेबल है, दैट इज। देन जो स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला वगैरह है, ये बहुत स्मॉल पोर्शन ग्राउंड वाटर का यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इन दैट मच ऑफ नीड ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, दे हैव अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अराउंड देम बिकॉज ऑफ द अदर काइंड ऑफ सोर्सेज दैट आर अवेलेबल, चाहे रेनफॉल ले लो, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ रिवर की प्रेजेंस ले लो, सरफेस वाटर ले लो, ठीक है। There are few other areas also जहाँ पे बहुत कम proportion ground water का use करते हैं, where the surface water is lot more, चाहे हम north eastern areas की बात कर लें, we may talk about few more other areas like West Bengal and all these sort of areas, ठीक है। इसके साथ साथ but in our book they have just mentioned Chhattisgarh, Odisha, Kerala and obviously etc. Then and few more examples I have already told you. Now moving on to the states which use the ground water resources at a moderate level, moderate rate पे करते हैं, ठीक है। ये कौन से हैं? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र। तो थोड़ा पानी है इनके पास, बट इनको ऑब्वियसली पानी ग्राउंड वाटर से भी अवेलेबल चाहिए, इनको अवेलेबिलिटी, दैट इज व्हाई ये मॉडरेट रेट पे यूज करते हैं, अपने वाटर अवेलेबल को भी यूज करते हैं, एंड देन अलोंग विद दैट इसके साथ साथ वो क्या यूटिलाइज करते हैं, द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ओके, तो मॉडरेट में आ जाएंगे हमारे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र, ठीक है। बट हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड that if the present trend continues, the demand for water would need the supplies, and such situation will be detrimental to development and cause social upheaval and disruptions. What do we mean by this? जिस हिसाब से चल रहा है situations है, ऑब्वियसली ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, और इसके लिए अगर ज्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया गया, ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज किया गया, तो ये जो है हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए नेगेटिव रोल प्ले करेगी। एंड व्हाई? बिकॉज it will cause social problems. People will be in a condition to fight for water because obviously everyone will need water for all the other purposes, and तो social disruptions होंगे, social upheaval होगी, so we need to understand कि water जितना भी available है हमारे पास, यहाँ पे specifically ground water level की बात करें तो it is very necessary for us to utilize it very judiciously, very wisely, so that we have enough and we can we reach in a position where we are not in a kind of situation जहाँ पे we are fighting for water. Okay, so ये ग्राउंड वाटर लेवल की बात है। अपने इंडिया में कितना अवेलेबल है? 432 क्यूबिक किलोमीटर
स्टेट्स, किसी किसी स्टेट्स में बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु. वी नो द रीजंस, एग्रीकल्चर एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर. देन कम होता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला एक्सेट्रा, और मॉडरेट गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र. एंड फाइनली वी नीड टू यूज इट वेरी वेरी वाइजली so that water is utilized, we are using it for our development, but we are not causing detrimental conditions for the development. Okay, so with this we complete today's class. We have done groundwater resources, we have done surface water resources, and we have done the introduction of the chapter. Okay, water resources. So I suppose जितना भी हमने किया introduction water resources in India, जिसमें हमने surface water resources और ground water resources किए. I think must be clear to you people. If you have any doubt regarding whatever we have covered, do come back with your problems and we'll discuss and solve. Now meet you all in the next class.